Dear students, in the previous class, we have talked about the innate immunity. We said that innate immunity is a type of immunity which we attain since our birth, and innate immunity includes mainly 4 barriers, which were physical barriers, physiological barriers, cellular barriers, and cytokine barriers. So in the previous class, we have discussed in detail about all of these 4 barriers. But innate immunity, which we attain since our birth, is different from the acquired immunity. So today we are going to talk about the topic of acquired immunity, which is the immunity which we develop after our birth. So after our birth, in our lifetime, again we develop an immunity which is referred as the acquired immunity. So we will first mention that the acquired immunity, it is attained or developed in our lifetime. That is, throughout our lifetime, we will be developing a type of immunity which is referred as the acquired immunity. Acquired immunity is also known as adaptive immunity or specific immunity. So also referred as adaptive or specific immunity. Now why it is known as specific immunity? Because it is specific against an antigen. It is not a generalized one कि हर एक पैथोजन के लिए एक ही तरह की रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं है. Here the antibody production is going to occur, and since there is production of antibody which are specific against the antigens, therefore it is referred as the specific immunity or the adaptive immunity. We all will be having different levels of acquired immunity. If you have been exposed to a viral infection before, maybe you might have an adaptive immunity against it, but a person not exposed to it might not develop such type of immunity, and therefore it is known as the adaptive or the specific immunity. This immunity involves mainly the lymphocytes, and we can say that it involves the antibodies. So main requirement or main thing that is very important for acquired immunity is it involves specialized cells called lymphocytes and the antibodies. The most importantly, what does acquired immunity include? The white blood cells which are known as lymphocytes, and secondly it involves the antibody. It not only protects us from viral infection, but it also prevents the future attack of such infection for the second time. So acquired immunity protects one from viral infection, or you can say bacterial infection, as well as prevents any future attacks. Now prevents any future attacks or further attacks of the same pathogen means what? That once this happens, once you are suffering from a particular viral infection, maybe in your lifetime you are not going to develop that disorder or develop that infection for the second time. Why? Because here the cells are having a very specialized property of memory. So when we talk about characteristics of acquired immunity, we can mention that they are specific also, they are having diversity also, they are able to recognize the difference between self and non-self cells also, as well as they have a memory characteristic. तो acquired immunity जो है वो बहुत ही ज़्यादा beneficial है, क्योंकि यहाँ पे जो characteristics की हम बात कर रहे हैं उनकी वजह से कोई भी future attack नहीं होगा of the same bacteria, same pathogen for the second time.
or even if it happens, the chances are very rare. So when we talk about characteristics of the same, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करते हैं, यहाँ पे याद रखना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी। लिम्फोसाइट्स में दो तरह के लिम्फोसाइट्स थे, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ओके। इसीलिए दोनों तरह के लिम्फोसाइट्स जो है एज वेल एज एंटीबॉडीज प्ले अ मेजर रोल इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, स्पेसिफिसिटी। द सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं टुवर्ड्स द एंटीजन। सो सेल्स आर specific towards the antigen। तो कोई भी एंटीजन है पर उसके लिए सेल्स जो है वो स्पेसिफिक हो जाते हैं, मतलब बी सेल्स जो होते हैं उनके सरफेस पे, बी सेल्स के सरफेस पे एंटीजन होते हैं जो मतलब एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग साइट्स होती हैं और ये ही वो फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है। तो बी सेल्स जो है वो अलग अलग होते हैं जिनके पास अलग अलग रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं और उन पे अलग अलग तरह के एंटीजन जो है वो अटैच होते हैं। सो बी सेल्स एंड टी सेल्स आर स्पेसिफिक इन देयर वर्क। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो देयर इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन व्हाट, recognition of foreign antigen। कोई भी फॉरेन एंटीजन है उसे रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा, राइट, कि बैक्टीरिया है, पैथोजन है, वायरस है, क्या है, उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो रिकॉग्निशन के लिए भी ये काफी अलग अलग तरह के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स की डाइवर्सिटी भी बहुत ही ज्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम डाइवर्सिटी, नेक्स्ट फंक्शन that is differentiate between self and non-self। differentiate between self and non-self। यहाँ पे जो B cells और T cells हैं वो खुद के self cells को अटैक नहीं करते, instead they go and attack only the non-self cells of our body। So non-self cells जो है मतलब कोई फॉरेन एंटीजन है उसे रिकॉग्नाइज करना और उसी पे अटैक करना, ये फंक्शन जो है वो किसका है, बी सेल्स और टी सेल्स का। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन से सेल्स सेल्फ हैं और कौन से सेल्स नॉन सेल्फ हैं। इसके अलावा द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मेमोरी। मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेल्स जो है दे आर एबल टू, सबसे पहली बार जब फॉरेन एंटीजन एंटर होता है तो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसे कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन। तो जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ उसे कहेंगे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाते हैं जिन्हें कहते हैं मेमोरी सेल्स। जब प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो मेमोरी सेल्स फॉर्मेशन हो जाता है और मेमोरी सेल्स जो है वो उनके पास एबिलिटी होती है ये याद रखने की कि पहले या क्या ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, अगर हुआ है तो इट विल बी फॉर द सेकेंड टाइम व्हेन द सेम पैथोजन ट्राइज टू एंटर, it will generate the secondary immune response, right? second exposure पे क्या डेवलप होगा, secondary response। और secondary response जब डेवलप होगा तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा and it will not allow the pathogen to invade into your body for the second time। पहले इम्यून रिस्पॉन्स में पैथोजन एंटर हुआ, मेमोरी सेल्स फॉर्मेशन हुआ, ये सेल्स ने याद रख लिया है कि क्या ये पैथोजन पहले एंटर हुआ है, तो जब सेकेंड एक्सपोजर होगा, दूसरी बार जब वो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होने का ट्राई करेगा तब ऑलरेडी हमारे पास मेमोरी सेल्स हैं जिन्हें याद है
that this pathogen had entered before also, and therefore they will be generating the secondary immune response which is very effective in killing of the particular bacteria or viral pathogenic organism. And therefore it is said that it not only protects from viral diseases, it not only protects from the pathogen for one time, instead it also prevents from any other future attacks. बाद में भी कोई उनके अटैक्स ना हो, इसके लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिन्हें कहा जाता है मेमोरी सेल्स, जो बी सेल्स में से ही बनते हैं। बी सेल्स जो होते हैं वो जब पहली बार कोई एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं तब वो मेमोरी सेल्स बनाते हैं, और ये मेमोरी सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक है टू मेमोराइज द पैथोजन इफ इट हैज एंटर्ड प्रीवियसली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। स्पेसिफिक होता है मतलब कोई भी एंटीजन के लिए रैंडम नहीं होता कि एक ही तरह का रिस्पॉन्स जनरेट होगा, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज डेवलप होती है। किस तरह का एंटीजन एंटर हुआ है उसके हिसाब से अलग से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है। डाइवर्सिटी, क्योंकि वो बहुत रेंज के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही या दो ही बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है। बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से वायरसेस हर एक के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी रखते हैं, इसीलिए डाइवर्सिटी। सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स खुद के एंटीजन को कुछ नहीं होने देते, सिर्फ वो फॉरेन एंटीजन को किल करते हैं, तो इसके लिए खुद के एंटीजन को तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो सेल्फ एंटीजन रिकॉग्निशन इज एक्चुअली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्वायर्ड immunity, and to kill the non-self is a character of acquired immunity. And lastly, they have an ability to memorize the cells, the pathogens which have entered previously, and prevent any other counter attacks by the same pathogen. Prevent any other counter attacks by the same pathogen. अब ये जो सारे इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उनमें मैंने कहा कि दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व है, बी सेल्स और टी सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स का जो फॉर्मेशन है वो किसमें से होता है? तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ lymphocytes occurs from pluripotent stem cells of bone marrow। तो हमारा जो बोन मैरो होता है, राइट, जो हमारे पास रेड बोन मैरो है, तो रेड बोन मैरो में स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स होते हैं, और इन स्टेम सेल्स को कहा जाता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। यही जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, they give rise to two types of cells, myeloid stem cells and other type of cells जो होते हैं lymphoid stem cells। मतलब दो तरह के स्टेम सेल्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे, माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड जो स्टेम सेल्स हैं, इनमें से क्या बनता है? तो माइलॉइड स्टेम सेल्स गिव राइज टू योर ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स जो है वो माइलॉइड स्टेम सेल्स में से बनते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स के अलावा मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज, ये तीनों जो हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड ऑल द टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, तीनों जो है वो किस में से बनते हैं? माइलॉइड स्टेम सेल्स में से। और लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो है उनमें से बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर cells. Okay, these two are collectively called lymphocytes. तो ये lymphoid stem cells, मतलब जो pluripotent stem cell है, उसका मतलब क्या है कि it can differentiate into different types of cell। ये एक pluripotent stem cell एक ऐसा सेल है, ऐसा मास ऑफ सेल है, टिश्यू है, जो क्या करेगा? It can itself differentiate into number of cells। उनमें से कई तरह के सेल्स बन सकते हैं। तो जो कई तरह के सेल्स बन रहे हैं
उनमें से दो तरह के मेन स्टेम सेल्स होते हैं, माइलॉइड और लिम्फोइड। माइलॉइड स्टेम सेल्स जो है उनमें से ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस बनते हैं, और लिम्फोइड जो है उनमें से बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल फॉर्मेशन होता है। तो दैट वाज अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो तरह की होती है, मेनली ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है, और दूसरी जो है वो है सेल्यूलर इम्यूनिटी। दैट इज अनदर थिंग, दैट विल बी अनदर टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो हम यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के